Good morning, guys. Yes, because of some laptop issues, the lecture has been delayed. Okay. But still, we have 40, 50 odd minutes. So, we will do the chapter number two. I guess we are going to start with today. I just give me the confirmation. You are getting my voice properly and screen is visible. Yes, sir. Okay, chalo. So in last some of the lectures we have been talking about model number one, chapter number one, that is about the history and parts of the computer in which just जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कल के परसों के लेक्चर में मैंने बताया था, please join the classroom. Whatever notes or study material will be I will be having, all will be uploaded to the Google Classroom. So please go to the Google Classroom and start reading or start learning these particular concepts. So we have already completed our chapter number one, that is about the history and parts of the computer. For your reference, I will just tell you what exactly you need to do as the textbook का copy. So the textbook whatever we are going to use, that is मनन प्रकाशन, उसका ही पूरा का पूरा scanned copy मैंने chapter wise करके रखा है, and that you will get through Google Classroom only. So you can use either of these particular things, or you can go for some of the other stuff which is available on the Google, that is internet पे बहुत सारा ऐसे आपको available मिलेगा. Even इसके साथ whatever PPTs I am being used, I am using that particular also PPTs I have posted on the Google Classroom. So multiple study material is there. Just need to study hard. Okay. So using this textbook, that is our Manan Prakashan, we have started with our first unit, first chapter, history and parts of the computer, in which we have seen what exactly computer, advantages of computer, disadvantages of computer. So this particular part we have seen already. Okay. Just इसको और थोड़ा सा कम कर देता हूँ so that it will be easier for you. After that, we have completed classification of computer, in which two important categories we have seen, that is on the basis of working principle, and second one on the basis of size, or we can call it as data processing power. So in which different categories we have seen. In the first one, that is about analog computer, digital computer, hybrid computer, ये तीन पार्ट देखे. एंड सेकंड में सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर एंड पीसी, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर. So that is we have seen in the categories of computer. Next one, that is about the generations of computer. तो total 5 generation, first, second, third, fourth, and फिर उसके क्या क्या features है, how we have been using those particular generations, and how we have been evolving from one generation to another generation. That particular part we have seen. After completing this, we have seen parts of computer. Okay, ये last lecture में हमने देखा था, जिसमें this type of diagram we have seen, जहाँ पे two important parts they have given, that is first is input device, another is output device, and the middle one, which is known as a CPU, that is central processing unit, which helps you to process whatever inputs you are going to get, and उसी प्रोसेसर का यूज करके यू आर गोइंग टू गिव द आउटपुट, दैट इज रिक्वायर्ड आउटपुट. सो ये इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सीपीयू क्या है, सीपीयू के अंदर फर्दर 2-3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स वी हैव सीन, दैट इज मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. देन मेमोरी को हमने आगे क्लासिफाइड किया, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दैट इज प्राइमरी मेमोरी, secondary memory, network memory. So we have seen everything possible regarding the memory, that is primary can be divided into two important parts, RAM and ROM. फिर उसका डिफरेंस हमने देखा, RAM में कौन से कैटेगरीज आते हैं, ROM में कौन से कैटेगरीज है. सो दैट पर्टिकुलर थिंग वी हैव ऑलरेडी डन. सो एवरीथिंग इज हियर इन दिस टेक्स्ट बुक. ये जो स्कैन कॉपी है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, वॉट एवर वी हैव डन, एंड प्रॉपर वे में भी मिल जाएगा. सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम दिस बुक ओनली. ओके,
आफ्टर दैट ये स्टोरेज कंप्लीट होने के बाद वी हैव बीन सीइंग, यस, दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज यूनिट्स ऑफ मेमोरी और स्टोरेज मेजरमेंट, कौन से यूनिट यूज आप करते हो. सो वी ऑल नो, क्योंकि आजकल हम लोग MB एंड GB ये तो यूज करते ही है. सो जस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द यूनिट्स. तो वन, जीरो और वन को बोला जाता है बेसिकली बाइनरी डिजिट्स, ओके, बिट्स बोला जाता है. 8 बिट का मतलब 8 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशंस को हम एक बाइट बोलते हैं, दैट इज अबाउट 1 कैरेक्टर. 1024 बाइट्स का मिलके बनता है 1 KB, दैट इज किलोबाइट. एंड 1024 किलोबाइट्स का मिलके बनता है 1 MB. एंड सेम ये 1024 का आंकड़ा जो है वो हमेशा सेम रहेगा. जस्ट यू कैन सी कौन से यूनिट्स है. सो बिट पहले सबसे लोएस्ट है, वो है बिट. उसके बाद आता है बाइट, देन KB, MB, GB, TB, PB, XB, ZB एंड YB. सो ये अलग अलग यूनिट्स है, ये आप याद रखो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. मतलब हाउ मच GB इज इक्वल टू 1 वॉट, दैट इज TB और वॉट. तो ये सब पूछा जा सकता है. तो जस्ट कीप इन माइंड, ये जो हायरार्की है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, ये याद रखो. बाइनरी डिजिट दैट इज बिट सबसे लोएस्ट होता है, एंड 8 बिट का मिलके बनता है 1 बाइट. यही एक डिफरेंस है. बाकी आगे अगर आप देखोगे तो हर जगह पे 1024 का काउंट इज सेम. सो बिट, बाइट, KB, MB, GB, TB, PB, XB, ZB एंड YB, ये याद रखना है. देन वी हैव सीन सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आउटपुट डिवाइसेस में तो ऑब्वियसली वी नो कौन से आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, दैट इज मॉनिटर. देन आपका आता है व्हाट वी कैन कॉल इट अ स्पीकर. So these particular things, pen drive can be considered as a output device. So printer. So these are the output devices we know. So from that perspective, that is parts of the computer, almost everything we have done. After that, we have even seen a secondary storage device, जहाँ पे memory के part में कुछ एक topic था, that is about the secondary storage device. So we have seen कि floppy disk, मैंने आपको photos के through भी दिखाया floppy कैसे था, जो आउटडेटेड हो चुका है ऑलरेडी. सो फ्लॉपी डिस्क वी हैव डिस्कस. देन बूट सेक्टर, इसका तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है आपको, बट इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर पार्ट. फ्लॉपी डिस्क के बाद हमने देखा दैट इज अबाउट हार्ड डिस्क क्या होता है. ओके, सो हार्ड डिस्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हो. सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज हियर, यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर पार्ट. हार्ड डिस्क के बाद आता है आपका CD, दैट इज अबाउट द कॉम्पैक्ट डिस्क. सो कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में हमने देखा कि कौन से मटेरियल से बना होता है, ये कितना कैपेसिटी होता है एंड ऑल. सो दैट थिंग वी हैव सीन. उसके आगे हमने देखा DVD, दैट इज डिजिटल वीडियो डिस्क. तो उसका भी हमने कंपैरिजन किया विद द CD. वन मोर डिस्क इज देयर, दैट इज यू कैन सी ब्लू रे डिस्क. सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लू रे डिस्क, दैट इज BD बोला जाता है उसको. बिकॉज इसका जो कैपेसिटी है एज यू कैन सी, क्योंकि ये एक ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट है, एंड इसका जो कैपेसिटी है इट इज अप टू 25 GB टू 500 GB, एंड साइज इज सेम एज CD एंड DVD. तो CD एंड DVD का जितना साइज है उसी साइज का ये ब्लू रे डिस्क होता है, बट इसका कैपेसिटी इज टू मच एज कम्पेयर टू CD एंड DVD. सो यहाँ पे दैट इज ब्लू वॉयलेट लेजर का यूज किया जाता है. सो इंस्टेड ऑफ रेड लेजर लाइट, यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड करने के लिए ब्लू वॉयलेट कलर का जो लेजर होता है उसका यूज किया जाता है, एंड दैट्स द रीजन इट इज नोन एज अ ब्लू रेड डिस्क. ओके, इवन इट कैन रिकॉर्ड हाई डेफिनेशन वीडियोज इन एडिशन टू नॉर्मल डेटा ऑल्सो, एंड उसका ऑब्वियसली कॉस्ट तो क्या रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा. ओके, सो ये एक डिस्क है. सो 3 टाइप के डिस्क हमने, 4 टाइप के, दैट इज हार्ड डिस्क. उसके बाद हमने CD देखा, कॉम्पैक्ट डिस्क, देन DVD देखा, ब्लू रे डिस्क देखा. ओके, उसके पहले फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी ड्राइव. तो ये अलग अलग स्टोरेज मीडिया वी हैव सीन. एंड द लास्ट वन दैट इज अबाउट द पेन ड्राइव, जो करंटली मार्केट में हम लोग आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो है पेन ड्राइव का. सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इसके लिए अलग अलग नाम दिए हैं, दैट इज यूएसबी ड्राइव, यूएसबी स्टिक, थंब ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जंप ड्राइव। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह पे आप जाओगे तो अलग अलग नाम आपको पेन ड्राइव के मिलेंगे। सो बेसिकली पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल डिवाइस विच अलाउज यूजर टू ट्रांसफर द डेटा to and from the computer quickly. So it is a portable. Why the word portable is used? Because we can carry that particular thing from anywhere. एंड जहाँ जहाँ पे भी कंप्यूटर आपको मिलेगा, जहाँ पे स्लॉट मिलेगा, दैट इज यूएसबी स्लॉट इज रिक्वायर्ड। अगर आपको वो स्लॉट मिलता है तो यू कैन इजीली इंसर्ट दैट पर्टिकुलर पेन ड्राइव टू द कंप्यूटर एंड एक्सेस द डेटा विच इज रिक्वायर्ड। सो पेन ड्राइव आज के ज़माने में तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला डिवाइस है, दो इट कैन नॉट रिप्लेस द यूएस हार्ड डिस्क, क्योंकि हार्ड डिस्क इज द वन प्लेस जहाँ पे आप एक्चुअली परमानेंट डेटा आप स्टोर करते हो, ठीक है। एंड पेन ड्राइव इज द वन कि जहाँ पे यस जस्ट द मेन important aim of using pen drive is what, that is it is used for transferring the data, it is not actually used for storing the data। तो पेन ड्राइव में हम लोग डेटा स्टोर करके ज़्यादा दिन के लिए ऐसे रखते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, वी जस्ट ट्रांसफर द डेटा टू द पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं so that it can be used to transfer that particular data to somewhere else। सो इंस्टेड ऑफ दैट फ्लॉपी डिस्क और सीडी, क्योंकि हमने देखा है कि ये सीडीज डीवीडीज वगैरह वहां पे भी तो डेटा स्टोर कर सकते थे, बट प्रॉब्लम क्या था वहां पे, दैट इज अगर उसका जो सेक्टर होता है, दैट इज जो उसका सरफेस होता है, उस सरफेस पे अगर स्क्रैच आता है तो मे बी इट इज पॉसिबल दैट योर डेटा कैन बी लॉस्ट, आपका डेटा लॉस हो सकता है, या कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो it is safer that you should have some another device that will contain the data and which will help you to easily transfer the data। So yes, definitely यहाँ पे देखो some advantages are there, some disadvantages are there। So whatever things आप जो भी यूज करोगे, either you prefer CD और डीवीडी और पेन ड्राइव, तो जो भी आपके हिसाब से, आपके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, आपके डिवाइस के हिसाब से, वॉट एवर थिंग इज अवेलेबल यू कैन यूज। बिकॉज द थिंग इज सीडी डीवीडी यूज करना है तो उसके लिए आपको सीडी रोम या डीवीडी रोम लगेगा, उसके अलावा आप यूज नहीं कर पाओगे। इवन टू एक्सेस द पेन ड्राइव आपको यूएसबी स्लॉट चाहिए, वो स्लॉट नहीं रहेगा तो यू कैन नॉट यूज द पेन ड्राइव ओनली। इवन जब भी आप पेन ड्राइव परचेस करते हो तो यू मे हैव नोटिस कि कभी कभी आप पेन ड्राइव लेते हो एंड सडनली आप कभी कभी बोलते हो यार ये पेन ड्राइव में डेटा मतलब आप कुछ डेटा कॉपी पेस्ट करते हो तो वो कॉपी पेस्ट होने के लिए बहुत टाइम लेता है। तो ऐसा होता है, वाई, देखो जिस हिसाब से आप पेन ड्राइव परचेस करते हो उसमें भी ट्रांसफर स्पीड इज इम्पॉर्टेंट। इसीलिए कभी कभी आप देखते हो कि किसी किसी पेन ड्राइव के दो पेन ड्राइव है अलग अलग कंपनी के, उनका साइज इज सेम, सपोज दोनों 16 GB के हैं, ठीक है। नाउ 16 GB के दोनों पेन ड्राइव है बट अलग अलग कंपनी के हैं एंड कॉस्ट भी अलग अलग है। सो यू व्हाट यू डू, वी प्रेफर नॉर्मली जो चीपेस्ट है वो उसको हम प्रेफर करते हैं। बट द थिंग इज व्हाट हैपन्स इज व्हेन यू यूज दैट पर्टिकुलर यूएसबी ड्राइव पेन ड्राइव, देन वहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर का रेट जो है वो कम होता है। So we need to keep this particular part also in our mind। Okay, nowadays तो ऐसे पेन ड्राइव भी आ चुके हैं जो पेन ड्राइव आप स्मार्टफोन को भी आप अटैच कर सकते हो। आई होप आप में से किसी ना किसी को तो मालूम रहेगा या किसी ने तो यूज किया रहेगा। तो ऐसे पेन ड्राइव है बोथ साइडेड, दैट इज बाय वन एंड यू कैन अटैच दैट पर्टिकुलर पेन ड्राइव to the smartphone and from another side you can use that particular pen drive to the आपके टीवी या आपका कंप्यूटर, तो एसडी कार्ड यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। आई होप आपने ऐसे पेन ड्राइव देखे हैं। यस, ओके। सो दीज पर्टिकुलर थिंग्स वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे आपका ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर and whatever we need to explore regarding the computer, so that particular thing we have done। so यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। you can see some of the important photos they have shown you
that is whatever is there inside the CPU और computer. As you can see, CD-ROM, DVD-ROM वहाँ पे दिखाया है, कैबिनेट दिखाया है, CPU और प्रोसेसर, इंटेल का प्रोसेसर दिखाया है. देन यस, फैन इज रिक्वायर्ड. अब ये सब आगे हम देखेंगे. नाउ फैन, व्हाई फैन इज रिक्वायर्ड? ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट विद द कंप्यूटर, आपका प्रोसेसर जब काम करना, प्रोसेस करना स्टार्ट होता है ना, सो बिकॉज ऑफ व्हाट यू कैन से मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क परफॉर्मेंस, वहाँ पे ना हीट जनरेट होता है. एंड ये हीट जनरेट जो होता है उसको अगर आप ठंडा नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है. सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, फॉर वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए वी नीड टू गो फॉर द फैन. ओके, CPU फैन इज देयर, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, मेमोरी, ये मेमोरी कार्ड है यहाँ क्या. देन ये मॉडम, लैन कार्ड बोलते हैं, ये मॉडम लैन कार्ड है. देन मॉनिटर है, उसके नीचे आप पावर सप्लाई का वायर देख सकते हो. सेंटर में आप देख सकते हो मदरबोर्ड. यस, तो ऐसे ही दिखाई देता है मदरबोर्ड. या आप घर पे आपका अगर ये रहेगा तो कंप्यूटर रहेगा तो आप ओपन करके देख सकते हो. डोंट वरी, कुछ नहीं होता. जस्ट वो बॉक्स ओपन करके देख लेना एक बार. जस्ट मेक श्योर कि पावर ऑफ कर दो. देन NIC, दैट इज नेटवर्क कार्ड, लैन के लिए यूज किया जाता है. यस, नीचे देख सकते हो साउंड कार्ड. तो ये अगर नहीं रहेगा तो यू कैनॉट लिसन टू द साउंड, मतलब म्यूजिक वगैरह आप सुन नहीं पाओगे. वीडियो कार्ड, वीडियो ग्राफिक्स के लिए होता है. स्पीकर्स, अब ये स्पीकर्स जो है ये दिखने में आपको स्पीकर्स दिखते हैं लेकिन दैट पर्टिकुलर स्पीकर्स नीड टू बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. जब तक आप कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको आवाज नहीं आएगा. तो वो कनेक्ट कहाँ पे करते हैं? टू द साउंड कार्ड. सो साउंड कार्ड में आपको ये 3-4 होल दिख रहे हैं, देखो वहाँ पे. सो वहाँ पे ये वायर जो है स्पीकर का वो अटैच किया जाता है, तब जाके आपको वो म्यूजिक सुनाई देता है थ्रू द स्पीकर. सो साउंड कार्ड, जितने भी कार्ड्स है तो वो जो स्लॉट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी, यही इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. दैट इज अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द कंप्यूटर. सो कुछ इम्पोर्टेंट व्हाट वी कैन कॉल इट एज कि कुछ टर्म्स है इम्पोर्टेंट, वो हम देखेंगे. एंड कुछ इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के ऑब्जेक्ट्स है जो हम लोग यूज करते हैं या कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं. सो दैट पर्टिकुलर थिंग वी विल सी. नाउ ये ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है गूगल क्लासरूम में. जैसे मैंने आपको बताया था, यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग द असाइनमेंट. ओके, आपको असाइनमेंट लिखना है. मैं कंबाइनली वो असाइनमेंट वहाँ पे पुटअप करूँगा. बट फॉर यूर सेक व्हाट यू नीड टू डू, असाइनमेंट में आपको क्या करना है, दैट इज, अब यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर्स जो दिख रहे हैं, अब इसमें से आई विल, ओके चलो, आई विल गिव यू दैट पर्टिकुलर थिंग लेटर. सिर्फ आपको क्या करना है, एक कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर दो एटलीस्ट. क्योंकि मतलब क्या होगा, बाद में मैं 4-5 क्वेश्चन एक साथ दूंगा तो फिर हेक्टिक हो जाएगा. तो अभी से एक एक लिखोगे तो एटलीस्ट आपका कंप्लीट तो हो जाएगा. यस, सो व्हाट यू विल डू, you are going to write a short note on generations of a computer. okay, याद रखो, write a short note on generations of computer. ये आपका पहला क्वेश्चन है असाइनमेंट का. एंड इसका आंसर इसी में से देख के आपको लिखना है. ये लिख के रखो, आगे का क्वेश्चन आगे के चैप्टर के वक्त मैं आपको बताऊंगा. ओके, सो एंड इवन ये जो फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स जो भी है, ये सब प्रिपेयर करना प्रॉपरली. इसी के ऊपर आपका टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट बोलो या फिर आपका जो मेन टेस्ट रहेगा, तो वो भी इसी के ऊपर हो सकता है. MCQs आएंगे ही आएंगे. सो इसमें से ही प्रिपेयर करना. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर. आई होप ये फर्स्ट चैप्टर जो है ये सबको समझा रहेगा. एंड वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू विदाउट एनी डाउट क्लियर हुआ रहेगा आइडिया. यस, जस्ट गिव द कंफर्मेशन. बोलो जल्दी. Okay, now we will start with the next topic, next chapter, that is about the anatomy of computer. Now in this, जैसे मैंने आपको बताया
कि कंप्यूटर में जो यूज़ किए जाते हैं, कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, हर एक का कुछ ना कुछ एक पर्पस होता है यूज़ करने के लिए। सो दैट पर्टिकुलर थिंग वी विल डिस्कस टुडे। क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स तो हमने कंप्यूटर के देख लिए, बट ऐसे भी कुछ है जो ज़्यादातर मतलब हम लोग डिस्कस नहीं करते, बट वी शुड नो एज वी आर आईटी स्टूडेंट्स, तो वी should know everything about the computer. So the first one, as you can see on the screen, that is about the clock speed. So clock speed is what? It is the speed at which the processor executes instruction. तो ये हम सेम ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ भी। सो ये क्लॉक स्पीड का मतलब क्या है कि अगर आप कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो तो वो परफॉर्म करने के लिए प्रोसेसर कितना टाइम ले रहा है, मतलब आपके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर कितना टाइम ले रहा है। एंड दिस पर्टिकुलर स्पीड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हर्ट्स, HERTZ। ठीक है, जनरली हम मेगा हर्ट्स में उसको कैलकुलेट करते हैं। सो मेगा हर्ट्स दैट इज मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, और गीगा हर्ट्स बोला जाता है दैट इज बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड। सो कीप इन माइंड ये आपको क्लॉक स्पीड क्या होता है एंड उसका यूनिट क्या है। तो यूनिट क्या है, दो यूनिट नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, एक तो मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स। ओके, ये याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ 480 MHz प्रोसेसर कैन परफॉर्म। अब ये 480 MHz प्रोसेसर मतलब क्या, तो ये प्रोसेसर आप जब कंप्यूटर ऑन करोगे ना तब आपको स्टार्टिंग में ये सब कुछ दिखाई देता है, आपके कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन कि कितने हर्ट्स का आपका प्रोसेसर है। सो इफ यू सी दैट कि 480 मेगा हर्ट्स का प्रोसेसर है आपका, तो इतना समझ लेना कि ये आपका प्रोसेसर कितना कैपेबल है, तो वो 480 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये रन कर सकता है। दैट मीन्स कितने, सो वेयर एज 2.4 गीगाहर्ट्ज कंप्यूटर का मतलब क्या है, दैट मीन्स यू कैन सी, देखो कितने साइकिल्स वो एक सेकेंड में रन कर सकता है। सो जितना ज़्यादा आपका क्लॉक स्पीड रहेगा उतना ही आपका प्रोसेसर क्या रहेगा, यू कैन कॉल इट एज कि फास्टर है। सो आपके एग्जीक्यूशन फास्ट होंगे एंड आपका जो स्लैग आता है, लैग आता है, जब भी आप कुछ काम करते हो कभी कभी आपको ऐसा लगता है अपना कंप्यूटर थक गया है, मतलब रुक रुक के काम कर रहा है या फास्टर आपको आउटपुट नहीं दे रहा है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस में भी ऐसा हो सकता है कि आपका क्लॉक स्पीड क्या है, कम है। सो जहाँ पे क्लॉक स्पीड ज़्यादा होता है उसका हर्ट्स दैट इज गीगा हर्ट्स और मेगा हर्ट्स, ये जो उसका स्पीड है मेजर प्रोसेसर का एग्जीक्यूशन पावर है, ये जब ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली आपका जो भी आपका प्रोसेसर है उसका स्पीड ज़्यादा ही रहेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द क्लॉक स्पीड। नेक्स्ट वन इज अबाउट द स्लॉट। अब स्लॉट तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे स्लॉट्स तो ऑलरेडी देख लिए। जस्ट इफ यू वांट आई विल शो यू दैट थिंग। मुझे सिर्फ देखने दो कहाँ पे है, जस्ट लेट मी चेक आपको कहाँ पे देखने मिलेगा। सो यस, सो इन दिस पर्टिकुलर फोटो आप देख सकते हो बहुत सारे स्लॉट्स आपको देखने मिलेंगे। सो ये सब क्या है, ये सब ये वाइट कलर में या सॉरी ब्लैक कलर में जो दिख रहा है आपको, सो 1 2 3 4 5 6, ये चार छः जो वाइट कलर में आपको ये दिख रहा है, एंड राइट हैंड साइड पे बॉटम पार्ट पे अगर आप देखोगे ब्लैक कलर में, सो दीज आर नथिंग बट द स्लॉट्स। नाउ दिस पर्टिकुलर स्लॉट्स, द डिफरेंट प्रोसेसर यूज डिफरेंट सॉकेट्स और स्लॉट्स टू फिट ऑन टू द मदरबोर्ड। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे सेम ही मिलेगा, हर मदरबोर्ड के लिए, हर प्रोसेसर के लिए अपना अपना मदरबोर्ड का डिजाइनिंग होता है। सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द प्रोसेसर, normally there are two main types of slots for connecting to the motherboard. तो एक होता है सॉकेट 7 एंड दूसरा होता है दैट इज स्लॉट 1। सो ये दो टाइप के स्लॉट्स होते हैं, याद रखना। ओके, नॉर्मली पेंटियम जो है वो यूज करता है स्लॉट 1 फॉर कनेक्टिंग टू द मदरबोर्ड, एंड जो पुराने वाले जो है वो नॉर्मली यूज करते थे सॉकेट 7 दैट इज 3 to 1 पिन सॉकेट फॉर पेंटियम क्लास।
सो ये आपको इतना याद रखने की जरूरत एज सच तो नहीं है, बट स्टिल याद रखना कि स्लॉट इज द थिंग, स्लॉट एज अ नेम सजेस्ट, जहाँ पे आप क्या करते हो, यू आर गोइंग टू माउंट समथिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो ये जो स्लॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये व्हाइट कलर में एंड ब्लैक कलर में, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सो मल्टीपल कार्ड्स विल बी देयर, आप कार्ड्स वहाँ पे लगाते हो। ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वहाँ पे मे बी यू आर गोइंग टू इंसर्ट रैम, तो वो रैम्स अगर आपको बढ़ाने हैं तो दैट्स वाई द स्लॉट्स आर गिवन। तो इन स्लॉट्स का यूज ये अलग अलग जो डिवाइसेस है या जो पेरिफेरल पार्ट्स है, उन पार्ट्स को अटैच करने के लिए ऑन टू द, और माउंट करने के लिए ऑन टू द मदरबोर्ड, उसके लिए हम लोग स्लॉट यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, after the slot, next component is that is about density. Now a CPU is basically made up of millions of small transistor. Yes, so all calculations and comparison operations are performed by the CPU by synchronizing between the transistor. अब ये जितना डिस्टेंस कम रहेगा ट्रांजिस्टर में, उतना ही ऑब्वियसली परफॉर्मेंस क्या रहेगा, फास्टर रहेगा, क्योंकि वी हैव सीन कि सीपीयू जो भी बनता है, अब सीपीयू पे अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है, वी ऑल नो, हमने जनरेशन में देखा, पहले जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया था, कोई बता सकता है? फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट यूज किया था? यस, कैन एनीवन टेल मी? बोलो जल्दी। यस, वैक्यूम ट्यूब, राइट। सो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था हमने फर्स्ट जनरेशन में। आफ्टर दैट उन्हीं वैक्यूम ट्यूब्स को हमने रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर, एंड देन फिर इन्हीं ट्रांजिस्टर को हमने फिर और इवॉल्व करते गए, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए। बट इसके ऊपर था क्या, इनके ऊपर क्या था, दैट इज ट्रांजिस्टर ही थे। द थिंग इज कि इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण उनका साइज जो है वो छोटा होता गया। सो एक तो केस ऐसा है कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पे मल्टीपल नंबर ऑफ thousands of or lakhs of transistors you can place at one go. So you can see कि millions of small transistors are used to create a CPU. Okay, and because of that जितना distance between the transistor is shorter, उतना ही performance क्या रहेगा, faster। ये आपको याद रखना है, ठीक है। Nowadays a CPU is having 0.35 micron distance between two transistor that is delivering faster performance। so performance अगर faster रखना है तो for that reason we need to have the shortest distance between the transistor, ठीक है। next one is that is mmx। अब इसका एक्सटेंशन है, इट स्टैंड्स एज अ मल्टीमीडिया एक्सटेंशन। नाउ एज अ नेम सजेस्ट, मल्टीमीडिया एक्सटेंशन मतलब क्या रहेगा, तो इट विल बी यूज्ड फॉर मल्टीमीडिया और ग्राफिक एप्लीकेशंस। सो mmx is a set of instructions built into the CPU which helps to improve the performance of multimedia or graphic applications। सो मेनली अगर आपको वीडियो गेम, लैन गेम वगैरह जो हायर डेफिनेशन के गेम्स अगर आपको खेलने हैं कंप्यूटर पे, तो फॉर दैट रीजन व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो ऑब्वियसली आपको भी मालूम है ग्राफिक्स कार्ड लगता है। so that particular graphics card and all is comes under this mmx। not only this graphic card but graphic card के साथ जो एलिमेंट आपको लगता है that is known as mmx या ActiveX डायरेक्टिव्स एक होते हैं। so that particular thing is required। ActiveX नहीं रहेगा, मल्टीमीडिया एक्सटेंशन नहीं रहेंगे, तो you cannot visualize that particular graphic of high definition game। so mmx is required। so mmx technology is inbuilt in all the latest processor। अभी जो भी नए इंटेल के प्रोसेसर आ रहे हैं उन सब में ये इनबिल्ट है। so don't worry regarding that। but yes, उससे भी आगे अगर और भी हाई डेफिनेशन गेम्स आपको खेलने हैं, then obviously you need to insert the graphic card। आपको ग्राफिक कार्ड लेना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज अबाउट द कूलिंग फैन। जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़े टाइम पहले डायग्राम में, कूलिंग फैन। सो नॉर्मली सीपीयू जनरेट्स लॉट्स ऑफ हीट व्हेन इन ऑपरेशन। सो फॉर कूलिंग पर्पस, तो उसको कूल करने के लिए वी यूज दिस कूलिंग फैन। सो व्हाट वी कैन से, अगर ये कूल प्रॉपरली नहीं हुआ, ज़्यादा हीट होते गया,
then obviously that CPU will not work according to the what we can say expectation. ओके, सिस्टम क्रैश भी हो सकता है ज़्यादा अगर हीट क्रिएट हुआ तो. सो फॉर दैट रीजन व्हाट वी नीड अ कूलिंग फैन. सो देयरफॉर थोड़ा सा एक छोटा ही रहता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहता. स्मॉल कूलिंग फैन वी यूज टू ड्राइव अवे द हीट जनरेटेड बाय द सीपीयू. Next one, the important part of the CPU, that is about the motherboard. So it is a large printed circuit board of a computer. आई गेस मदरबोर्ड का डायग्राम तो सबने देखा है या फोटो सबने देखा है. जस्ट लेट मी चेक इसके ऊपर है क्या. सो यस, दिस इज ऑल्सो अ मदरबोर्ड. आगे अगर आप जाओगे यहाँ पे तो मदरबोर्ड का आपको ये मिलेगा. जस्ट वेट एक मिनट. यस, सो दिस इज ऑल्सो मदरबोर्ड. यही एक फोटो है. ऐसे बहुत सारे आपको फोटोज मिल जाएंगे. आपको देखना है तो आप गूगल पे जाके इमेजेस देख सकते हो. मल्टीपल इमेजेस यू विल सी. ओके, दिस इज डायग्राम, फोटो डायग्राम, जहाँ पे मदरबोर्ड में कहाँ पे क्या क्या होता है तो कुछ स्लॉट्स के बारे में दिया है. जस्ट कंपैरिजन दिखाया है कि कौन सा स्लॉट कहाँ पे है. सो सम पावर सॉकेट, प्रोसेसर सॉकेट, एज यू कैन सी ये है प्रोसेसर सॉकेट. ठीक है, ये प्रोसेसर सॉकेट है. देन सम ऑफ द स्लॉट्स आर गिवन. एज यू कैन सी दीज आर द स्लॉट्स. ये भी बाकी के भी स्लॉट्स ही है. पीसीआई स्लॉट्स एंड कनेक्टर्स आर देयर. सो दिस इज द कनेक्टर. ये कनेक्टर्स है. ठीक है, पावर कनेक्टर्स आप बोल सकते हो इनको. कीबोर्ड प्लग एंड सो ऑन. तो मल्टीपल चिप स्लॉट्स एंड डिफरेंट आईएसए स्लॉट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं. ठीक है. So this is what we can say. It is like a large board, that is circuit board of a computer. So it holds most of the main electronic parts such as say processor होता है, RAM, ROM, BIOS, CMOS and many other devices. And that's why these devices are called as on-board. क्यों on-board बोलते हैं? क्योंकि इसके बोर्ड के ऊपर आप क्या करते हो, बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आप फिट करते हो. एंड दैट्स व्हाई दिस मदरबोर्ड इज आल्सो दिस डिवाइसेस which are been used on the motherboard is known as onboard devices. So motherboard is a channel for various components to interact and communicate with each other device. As the number of slots on the motherboards are limited, additional circuitry may be mounted on the daughter board. तो अलग से बोर्ड भी आप ले सकते हो. अगर आपको लगा कि यस, क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया था कि एक मदरबोर्ड है, उसके ऊपर अगर आप माउंट करोगे से सम ऑफ द रैम्स, तो 2-3 ही स्लॉट्स या 4 स्लॉट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं. बट नाउ इफ़ यू वांट टू हैव और भी रैम्स आपको ऐड करने हैं, देन you need to use a daughter board which is simply plug into the motherboard. तो extension करने के लिए add on अगर आपको circuits use करने तो उसके लिए you can go for this daughter board. So keep in mind this part, motherboard and daughter board. Next one is about BIOS. Yes, the BIOS is known as, it stands basic input output system. Now it is basically a small chip on the motherboard that loads the hardware settings required to load various devices like keyboard, monitor and disk drive. So जहाँ पे देखो normally what happens, बहुत सारे external devices होते हैं जो हम कनेक्ट करते हैं टू CPU. अब ये CPU को कनेक्ट करने के बाद CPU को तो समझ में आना चाहिए कि ये बाबा ये है क्या, एंड फिर उसको समझ के उनको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मर्ज करके लोड करना पड़ता है, तब जाके यू कैन यूज सम ऑफ दोज पर्टिकुलर डिवाइसेस. एंड फॉर दैट रीजन दिस बायोस विल हेल्प यू. तो ये जो चिप होता है ये आपको हेल्प करता है, आपको मतलब मदरबोर्ड को हेल्प करता है टू लोड दिस हार्डवेयर सेटिंग्स रिक्वायर्ड for say keyboard, monitor, disk drive and so on. Nowadays PC comes with the flash BIOS, that is this particular BIOS can be a software upgraded to support new devices. Yes, क्योंकि आजकल बहुत सारे नए नए डिवाइसेस आ रहे हैं जिनको आप कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हो. तो आज के ज़माने में जो भी PCs आते हैं नए नए, तो वहाँ पे फ्लैश BIOS आते हैं. ओके, इनबिल्ट ही होता है, बट इट इज़ लाइक अ सॉफ्टवेयर, वी कैन अपग्रेड दोज पर्टिकुलर थिंग. So if you want to use any new devices, so that particular thing can be easily used.
Next one is that is about CMOS. CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor. अब ये CMOS नॉर्मली इसको बोला जाता है CMOS बैटरी. ओके, अब इसका काम क्या है? तो इट स्टोर्स डेट एंड टाइम. ये याद रखना. तो आपके कंप्यूटर पे जो आपको डेट एंड टाइम, जब कभी भी आप ऑन करते हो तो आपको करंट डेट एंड टाइम मिलता है. स्विच ऑफ करने के बाद तो बंद होना चाहिए ना, लेकिन स्टिल आपका टाइमर जो है वो चलते रहता है. तो ये टाइमर क्यों चलते रहता है, कैसे चलते रहता है? क्योंकि आप कभी भी स्विच ऑन करोगे तो भी आपको एग्जैक्ट टाइम आपका कंप्यूटर दिखाता है. ऐसा होता है क्या कभी कि आपने कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ जिस टाइम पे किया था उसी टाइम से आगे जब स्विच ऑन करोगे तो होता है? नहीं, वो टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहता है इवन इफ योर कंप्यूटर इज स्विच ऑफ. सो ये कैसे होता है? तो ये होता है बिकॉज ऑफ दिस CMOS बैटरी. सो कीप इन माइंड दिस CMOS, it helps you, it helps computer to store the date and time. Okay, next one is about the expansion slot. Yes, expansion slots are available on the motherboard only. When any basic system, if you required it to expand that particular thing, that is RAM expansion करना है, या फिर आपको कुछ स्लॉट्स में अगर आपको कुछ कार्ड्स डालने हैं, so for that reason extra slots are given. So those particular extra slots are known as the expansion slot. Okay, next one, that is about SCSI, that is small computer system interface. Now it is basically a device that is used to solve the problem of possibility of insufficient number of expansion slot. Yes, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक्सपेंशन स्लॉट जो बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, क्योंकि जो भी स्लॉट्स है जनरली 4 से 5 स्लॉट्स आपको मिलते हैं एक्सपांड करने के लिए. अब उससे भी अगर आपको ज़्यादा एक्सपांड करना है देन व्हाट यू विल डू? तो वहाँ पे एक्सपांशन स्लॉट में भी आपने ऑलरेडी सम ऑफ द कार्ड्स यू हैव इंसर्टेड, बट स्टिल यू वांट टू एक्सटेंड, देन व्हाट यू कैन डू? सो फॉर दैट रीजन यू कैन गो फॉर दिस SCSI, that is small computer system interface. So instead of plugging interface cards into the computer bus via expansion slot, यहाँ पे what you can do, you can use SCSI extends the bus outside the computer via cable. So इसी का आप as a port use कर सकते हो, and multiple device you can connect through this particular SCSI port. Okay, अब ये देखो, आप बोलोगे सर आज क्या आप ले रहे हो? तो सम ऑफ द important concepts regarding computer which you don't know, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, एंड दैट्स व्हाई द टॉपिक नेम इज एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर. सो वी आर एक्सप्लोरिंग मोर अबाउट द कंप्यूटर, एंड इसीलिए जो जो कंप्यूटर में के अंदर जो भी डिवाइसेस या ऑब्जेक्ट्स हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में, या सम ऑफ द कीवर्ड्स वी यूज ऑफन रिगार्डिंग कंप्यूटर, तो वी शुड नो दैट पर्टिकुलर पार्ट. जब आप CPU ओपन करके देखोगे ना अंदर, तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, तो वो क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए हम ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, दैट इज एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर. नाउ नेक्स्ट वन इज अबाउट द पोर्ट्स एंड कनेक्टर. यस, नाउ पोर्ट इज व्हाट? इट इज डेफिनेटली अ हार्डवेयर डिवाइस विच अलाउज a series of bits to be transferred to the bus for data input or transfer of the data from bus to port of the data output. अब ये पोर्ट क्या होता है? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये देखो, ये पोर्ट्स जो है दैट कैन बी एक्ट एज अ कनेक्टर. तो ये जो बीच में सेंटर में जो आपको ये दिख रहा है, दैट इज वायर जो है, ये प्लग जो है, प्लग के बीच में सेंटर में जो आपको मेटल वाला ये दिख रहा है, दैट इज डॉट डॉट व्हाइट डॉट डॉट जो दिख रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अ पोर्ट, क्योंकि उसी को आप कनेक्ट करते हो टू द कार्ड या आपको कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, एंड उसी में से आपका डेटा क्या होता है, पास होता है. सो डेटा ट्रांसफर के लिए भी यूज पोर्ट, एंड कनेक्टर इज एन एंड पॉइंट ऑफ द हार्डवेयर डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर पोर्ट. तो कौन से पोर्ट को आपको कनेक्ट करना है, दैट पर्टिकुलर पार्ट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, कि कहाँ पे कौन सा आप यूज करना है. ये आप देखो, घर पे अगर आपके PC रहेगा तो जस्ट यू कैन चेक इट आउट कि कैसे कहाँ पे यूज किया है, आप देख सकते हो. मॉनिटर,
तो मॉनिटर का एक लाइन होता है, वहाँ पे पिन अलग होता है मॉनिटर को, एंड जब वो आप सीपीयू के अंदर कनेक्ट करते हो तो वो जो आप यूज करते हो जिस पोर्ट में डालते हो, जहाँ पे आप प्लग इन करते हो उसको हम पोर्ट कहते हैं। एंड जो वायर आप यूज करते हो वो जो एक एंड होता है उसको हम कहते हैं कनेक्टर। सो कनेक्टर में दो टाइप्स होते हैं, दैट इज मेल कनेक्टर एंड फीमेल कनेक्टर। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम यू कैन चेक इट आउट कि ये कनेक्टर है, पोर्ट कैसे है। ओके, so the physical interface for the ports and connectors are located on outside, that is back side of the PC, but they are directly or indirectly connected to the motherboard। so दिखते वक्त आपको कैसे दिखाई देगा कि वो बाहर कनेक्ट किए गए हैं सीपीयू के बाहर, लेकिन आप सीपीयू खोल के एक बार देखोगे ना तो यू विल रियलाइज कि दे आर एक्चुअली कनेक्टेड वाया सम कार्ड विच आर माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड ओनली। तो मदरबोर्ड को ही वो कनेक्ट किए जाते हैं। सो दीज आर द यूजफुलनेस ऑफ दैट पोर्ट एंड कनेक्टर। कनेक्टर का यूज आपको कनेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ टू टाइप्स ऑफ पोर्ट्स दे हैव गिवन, दैट इज पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट। सो पैरेलल इज बेसिकली अ यूनिडायरेक्शनल, सीरियल जो होता है बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों वेज में आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। नाउ दीज आर द फास्टर, पैरेलल जो होते हैं वो फास्टर है, सीरियल ऑब्वियसली स्लो रहेंगे बिकॉज टू मच टास्क दे परफॉर्म, दैट्स व्हाई। देन दे आर यूज टू कनेक्ट प्रिंटर स्कैनर। तो देखो प्रिंटर स्कैनर वगैरह जो है इनको कनेक्ट करने के लिए पैरेलल पोर्ट हम लोग यूज करते हैं। एंड अगर जहाँ पे व्हाट वी कैन से मॉडेम्स एंड ऑल ये सब अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप सीरियल पोर्ट यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पोर्ट एंड कनेक्टर। ठीक है, अब भी और भी बहुत सारे कनेक्टर्स है, यू कैन सी आईडीई ड्राइव कनेक्टर। तो सीडी रोम हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टिंग डिवाइसेस आप यूज करते हो दैट इज नोन एज आईडीई ड्राइव कनेक्टर। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को मदरबोर्ड से कनेक्ट करना है तो फ्लॉपी ड्राइव कनेक्टर होता है। यूएसबी कनेक्टर जो हम लोग बेसिकली आजकल यूज करते हैं सबसे ज्यादा। सो यूएसबी दैट इज स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस एंड इट इज यूज टू कनेक्ट डिवाइस। आजकल के तो बहुत सारे डिवाइसेस दैट इज कीबोर्ड, आपका माउस, ये भी यूएसबी डिवाइस हो चुके हैं। तो यूएसबी यू कैन सी दिस इज लाइक द यूएसबी स्ट्रक्चर, दैट इज ये कनेक्टर देखो फर्स्ट लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है आप देख सकते हो। सो नाउअडेज दिस टाइप ऑफ यूएसबी कनेक्टर्स आर देयर विथ एवरी डिवाइसेस। सो कीबोर्ड होने दो, माउस होने दो, डिजिटल कैमराज एंड सो ऑन। तो वो वायर हम लोग नॉर्मली कैरी करते हैं, आजकल सब लोग कैरी करते हैं हम लोग। so these are the connectors which used to what we can say connect the devices like keyboard, mouse, scanner, digital cameras, pen drive, etc. The basic purpose of this USB connector is that is to obviously transfer the data, but yes यहाँ पे जो speed है data transfer का, the speed of the data transfer is too much as compared to other, that is high speed is there. Okay, one more connector we need to discuss, that is about PS2. It stands for personal system / 2. So it is used to connect PS2 based input devices like keyboard and mouse. So this is also another type of connector. Then अब तक हम लोग बात कर रहे थे इतने टाइम से कि बस, क्योंकि हमने 2-3 बार बोला कि जब हम ट्रांसफर करते हैं डेटा, so we transfer the data from a bus to the port of the data. So what exactly this bus is? So bus is what? Bus is a collection of wires through which the data is transmitted between various component of PC. ये याद रखो। So bus is what? ये वायर का कलेक्शन है जिनका यूज किस लिए किया जाता है? डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। So typically bus is having 8 or 16 or 32 wires. So one wire can transfer 1 bit at a time. इसीलिए जब भी वायर्स का कॉम्बिनेशन अगर 8 बिट है, 8 वायर से तो हम बोलते हैं 8 बिट हम पास करते हैं, 16 है तो 16 बिट्स, 30 है 32 है तो 32 बिट्स। सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वायर्स वी यूज दैट डिजाइनिंग पैटर्न। सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बस, एक है डेटा बस, दूसरा है एड्रेस बस एंड तीसरा है कंट्रोल बस। सो ऑब्वियसली डेटा बस जो है उसका काम क्या रहेगा, तो टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर।
एड्रेस बस है तो उसका काम रहेगा एड्रेस ट्रांसफर करना ऑफ द मेमोरी। एंड द लास्ट वन दैट इज कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस का काम है दैट इज अबाउट टू इंश्योर दैट द डेटा इज रीड और रिटर्न टू द लोकेशन एट करेक्ट टाइम, दैट इज कंट्रोल करने का काम जो है वो उसका रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज अबाउट द कैश मेमोरी। नाउ वी हैव सीन कि हमने मेमोरीज के बारे में देखा, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। वन मोर important memory is there inside the computer which helps you for the execution, and that is known as a cache memory. It is the fastest memory of all. Okay, so cache means hidden. अब ये मेमोरी दिखाई नहीं देता, it is a hidden memory, so it cannot be used by user of a computer directly, but it can be used by the CPU, by the processor. Why? For achieving the high speed. So you can see cache memory is basically a high speed memory. It is capable of keeping up with the speed of ALU. So it acts as a buffer between the ALU and main memory, which is comparatively slow. So cache memory का purpose ही ये है क्या, to boost the processing power. तो अगर आपको आपका प्रोसेसिंग पावर बूस्ट करना है, फास्टर एग्जीक्यूशंस करने हैं, तो फॉर दैट रीजन कैश मेमोरी इज रिक्वायर्ड। नाउ डेफिनेटली इट इज एक्सपेंसिव, सो देयरफॉर नॉर्मली इट इज वेरी वेरी स्मॉल। एक्चुअली इट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ एस रैम। तो आपने हमने जो एस रैम रैम के बारे में जो हमने देखा ना, उसमें जो एक पार्ट होता है एस रैम का ही एक पार्ट होता है दैट इज नोन एज अ कैश मेमोरी। उसी के जैसे आता है वर्चुअल मेमोरी। नाउ वर्चुअल का मीनिंग है दैट इज इमेजिनरी विच इज नॉट एक्चुअल। सो इफ अ प्रोग्राम इज लार्ज देन मेमोरी देन प्रोग्रामर हैज टू यूज वर्चुअल मेमोरी। So a program is basically divided into small parts. Only one part is loaded into the memory and the other parts remain onto the disk. So virtual memory is basically the extension of primary memory by treating disk storage as a logical extension of RAM. So ये दोनों जो memories है, you can see these are not real memories. These are not actual memories, but these are the adjustment, little bit of adjustment made to perform a particular task. Whether it is a cache memory or a virtual memory, as you can see, cache memory is a part of SRAM, and it is actually used. Why cache memory used? तो cache memory में क्या होता है, तो execution के लिए जो required data जो है ना, प्रोसेसर को जो डेटा लगने वाला है एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो डेटा मेंटेन करने का काम जो है ना वो कैश मेमोरी करता है। इससे होता क्या है, सो कैश मेमोरी में वो डेटा है ना, तो प्रोसेसर को सबसे पहला एक्सेस जो होता है ना, फास्टर एक्सेस, वो कैश की तरफ होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कैश मेमोरी में ऑलरेडी डेटा इज अवेलेबल, तो वहां से डेटा उठा के फटक से ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके आपको आउटपुट मिल जाता है। दैट इज द पर्पज ऑफ कैश। अगर कैश नहीं रहेगा तो व्हाट विल हैपन, सो प्रोसेसर को मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा, वहां पे जाके जो सेकेंडरी मेमोरी में जहाँ पे जो डेटा स्टोर है वहां से डेटा रिट्राइव करके फिर उसका एग्जीक्यूशन करके फिर आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। एंड इन दिस पर्टिकुलर थिंग जो हमने सेकेंडरी मेमोरी देखा वो क्या है, वो स्लोएस्ट है, उसका पावर स्लो है। सो बिकॉज ऑफ दैट अगर आप कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने जाओगे विद द हेल्प ऑफ जस्ट अ मेमोरी, नॉट अ कैश मेमोरी, देन डेफिनेटली आपके एग्जीक्यूशन को टाइम लगेगा। So for that reason, to avoid such thing and to boost the processing power, we use cache memory, and same goes for virtual memory also. Now regarding some of the cards, as we have already discussed, three types of cards are there. एक तो हम ग्राफिक्स के लिए यूज करते हैं, एक साउंड के लिए यूज करते हैं, एंड दूसरा है दैट इज अबाउट वीडियो कार्ड। सो यू कैन सी साउंड कार्ड ऑब्वियसली ऑडियो सिग्नल्स को to and from the computer, if you want to use those audio signals or facilitates that input and output of audio signal, then definitely you need the card. So many computer, अब आजकल के जो computers हैं उनमें तो inbuilt ही आता है ये sound card, but if you don't have that particular thing then you need to use sound cards, which includes some of the music composition, editing, audio, video, presentation, etc. सो जो पुराने वाले पीसीज थे उनमें आपको साउंड कार्ड डालना पड़ता था, तो वो 8 बिट के साउंड कार्ड थे। आजकल के जो साउंड कार्ड है वो 32 बिट के आते हैं।
So more sound cards are being used nowadays. Similarly, sound card के जैसे ही color card, so it allows computers to produce colors and graphics on the screen. So normally हम color नहीं बोलते, उसको graphics card बोलते हैं. So the first color cards were 2 bit. पहले के ज़माने में जो थे वो 2 bit के रहते थे. आजकल तो 256 VGA adapter color cards are also available. Okay, so मल्टी कलर जब इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज सिमिलर टू VGA, दैट इज वीडियो ग्राफिक एडेप्टर, then 256 color mode, it has increased the abilities of showing that particular graphics on the screen. And because of that you can see आज के जो भी गेम्स आते हैं, स्पेशली लैन गेमिंग, सो लैन गेमिंग के लिए जो ग्राफिक्स लगता है, दैट पर्टिकुलर ग्राफिक्स वी कैन यूज ओनली थ्रू द कार्ड. बहुत सारे ठीक है, आजकल के नए जो पीसीज आए हैं उनमें इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड इज ऑल्सो देयर, बट हाई डायमेंशन गेम्स अगर आपको खेलने हैं तो डेफिनेटली फॉर दैट रीजन यू नीड टू यूज सच कार्ड्स, बिकॉज आपका जो मॉनिटर है वो उस टाइप के वीडियोस को, रिजोल्यूशन को शो नहीं कर पाता. फॉर दैट रीजन वी नीड टू यूज सच ग्राफिक कार्ड. And the last one is that is about the video card. So it allows computer to display video and animation. So it generally allows 3D, 2D graphics, TV tuner adapter, MPEG decoding, and etc. So high speed network connection is needed definitely for effective हेलो सर। video transmission. ओके सन, ओके ओके, नेक्स्ट लेक्चर का लिंक आ गया है, आई नो. सो यहाँ पे हम लोग आज स्टॉप कर देते हैं. जस्ट क्विकली आई विल टेक द अटेंडेंस. एज यू ऑल नो, थोड़ा लेक्चर हमारा भी लेट स्टार्ट हुआ था, तो डोंट वरी, वहाँ पे बोल देना कि थोड़ा प्रॉब्लम था, इसके कारण थोड़ा एक्सटेंड हो चुका है. क्विकली वी विल टेक द अटेंडेंस. ओके ओके, आज का डेट क्या है? 14 आई गेस सो, नहीं आज का 15 है. ओके चलो, फटाफट आप ये देना मुझे. रोल नंबर 1. चलो पहले अटेंडेंस तो दो. यस, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उतना उसका ही शॉर्ट नोट लिखो, बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या है. रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, okay, 58, 59, 60, ओके 53 भी लगा दिया, चलो 60 हो गया. ओके नेक्स्ट डिवीजन 101, 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30. एक मिनट, ये 53 की तरह से आ गया अभी. हो गया ना बेटा, कितने बार दोगे? 3 के बाद 6, ओके 6 के बाद 9, 12, 14, 9, 12, 14, ओके. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ओके. 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, खुशी 41, 42. हाँ हो गया। चिन्मय और खुशी और एक नया एडमिशन है क्या? ओके, एक मिनट। हाँ, खुशी सिंह। ओके, चलो थैंक यू।